Dear students, marhaban bikum. I welcome all of you in my Arabic learning program. In this lesson, we will learn names of colors in Arabic language. It means what are Arabic names of colors and how to pronounce these colors properly and how to use these words in sentences while writing and speaking. I think you will find it's a very beautiful and colorful lesson. It will help to express the names of colors in Arabic, and it will be very easy lesson, and you will enjoy learning names of Arabic colors. So first of all, I would like to tell you that we have two parts of this lesson. First part, as you know, we focus in every lesson in Arabic masculine and feminine. It's a very sensitive case in Arabic language, and it's very easy. There are not so many cases, grammars or complications, but we have to focus in masculine and feminine also. Masculine we say in Arabic muzakkar, and feminine we say in Arabic muannath. So in colors, to express the colors in Arabic, we have few words which have their separate and proper forms and patterns, and so I'm going to teach you first part of this lesson that will be focused on masculine, and we will learn both lessons step by step in two parts of this lesson. First part of this lesson is masculine based, and in this part of lesson we will learn use of masculine Arabic words of colors and few masculine words in Arabic. Now we start this part with a word color, that is called in Arabic lawnun. Its plural is colors, that is alwanun. For example, if you want to ask in simple question which color is this, then you will say in Arabic ayyu lawnin hadha. This is basic word, and we start from here. And now let's start learning colors name in Arabic. I will tell you in the beginning the names of colors in Arabic, and it's how to read it, how to pronounce it, what is the meaning in English. So come on, the words. First word is abyad. Abyad, it means in English white. Next word is aswad, it means in English black. After that, next word is ahmar, it means in English red. After that, akhzar, that means green. Next word is azraq, that is blue. Then next word asfar, that is yellow. These words have their separate and special pattern in feminine. I will let you know in second part of this lesson what would be the feminine of these words. Next word is bunni, it means brown. उसके बाद हम दूसरा वर्ड लेते हैं बुर्तकालियुन, it means orange. Then next word is ramadiyun. Ramadiyun means grey. There is another word for the same meaning, it means for grey. The word is rasasiyun.
Next word for purple color we are using in Arabic banafsajiyun, and for pink there is word Arabic word is wardiyun, and for golden we have zahabiyun, and for silver color we are saying in Arabic fiddiyun. These are names of colors in Arabic, and I would like to tell you a few related words. Like if I want to say this is light color, then what word we have to use? We have to use launun fatihun. Yani fatihun, this word is for light. And उसके बाद अगर हमें कहना हो, ज़रूरत पड़ती है हमको कहने की कि दिस इज़ डार्क कलर, सो हमें एक दूसरा वर्ड यूज़ करना है, उसके लिए है गामिकुन. गामिकुन मीन्स इन अरबिक जब हम यूज़ करते हैं गामिकुन का वर्ड, तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में डार्क वर्ड. दो वर्ड हो गए लाइट एंड डार्क के लिए. एक उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कलर नेम से रिलेटेड, वो है जिसको हम कभी कहना हो द सिस्टम इज़ कलर्ड, तो कलर्ड के लिए, अभी तो कलर था बट कलर्ड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मुलव्वनुन. दीज आर 16 वर्ड्स एंड दीज आर especially written or found in Arabic for to express the colors, and I would like to repeat these words so that we can make our pronunciation more clear. So let's again repeat the same word from beginning. I would read Arabic names and you would repeat with me. First is abyaz from beginning, and next word है aswad. aswad प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए. अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं भी अल्फ़ाबेट्स के प्रोनाउंस करने में हम कंफ्यूज होते हैं या उसको प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो उस वर्ड की मीनिंग चेंज हो सकती है. इसीलिए हमने उसको रिपीट किया है. हमारे साथ इन वर्ड को आप भी कहिए बार बार, उससे प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज अख़ज़र, अहमर, अज़रक़, और उसी के साथ हमने बताया था आपको एक वर्ड अस्फर. अस्फर. उसके नीचे वर्ड है बुन्नियुन, रमादियुन, बुर्तकालियुन. ये वर्ड इनको हमने दोबारा रिपीट किया है ताकि हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाए. अब ये तो हमारे वर्ड्स थे अरबिक के, जिसको हम कहने के लिए, कलर को एक्सप्रेस करने के लिए या कलर बतलाने के लिए हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. और ये वर्ड वो थे जिसको मैस्कुलिन फॉर्म में यूज़ किया जाता है, यानी अरबिक में जिसको हम मुज़क्कर कहते हैं. अगर कोई ऐसा वर्ड है जो मैस्कुलिन वर्ड है, उसके साथ हमें उसका कलर भी बतलाना है, तो हमारे पास जो कलर्स के वर्ड होंगे वो भी दैट मस्ट बी इन मैस्कुलिन फॉर्म. तो उसको कैसे यूज़ करना है, इसके लिए हमने कुछ न्यू वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं ताकि हमारी वोकैबुलरी में भी कुछ इजाफा हो. वी कैन लर्न मोर वोकैबुलरीज, बिकॉज इफ़ वी आर गोइंग टू लर्न एनी फॉरेन लैंग्वेज देन वी मस्ट फोकस ऑन मेमोराइजिंग द वोकैब्स. इसलिए हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ नए वर्ड्स एंड जो बहुत ही यूज़फुल हैं, डेली लाइफ में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको हमने सेलेक्ट कर रखा है. अभी आप सुनेंगे तो आप इंजॉय करेंगे और आपको मालूम होगा कि ये वर्ड वाकई इन रियली ये कितने यूज़फुल हमारे हो सकते हैं. हम डेली लाइफ में डे बाय डे, इवनिंग, मॉर्निंग, हर वक्त इन वर्ड की हमको ज़रूरत होती है. उसके लिए पहला वर्ड है हलीब. एक बार मैं फिर बतला दूं आपको कि दीज वर्ड्स आर इन मैस्कुलिन फॉर्म. फेमिनिन के लिए नहीं. अभी हम नेक्स्ट पार्ट में, यानी सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन में वी विल डिस्कस द फेमिनिन पैटर्न ऑफ कलर्स नेम. सो फर्स्ट वर्ड इज हलीब. हलीब, इट मीन्स इन इंग्लिश मिल्क. आप जानते हैं मिल्क जो दूध है, और दूध को हम सुबह शाम या तो दूध की शक्ल में पीते हैं या उसको चाय और कहवा बनाकर यूज़ करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जव्वाल. जव्वाल, जव्वाल मीन्स इन अरबिक मोबाइल.
आज के दौर में हर एक के पास मोबाइल है और वो उसकी अरबिक नहीं जानता, बट जो लर्नर्स हैं, जो अरबिक को सीखने जा रहे हैं, उनको तो कम से कम जानना चाहिए कि मोबाइल की अरबिक क्या होती है। इसलिए हमने ऐसे वर्ड सेलेक्ट किए हैं जिससे आप फैमिलियर हो और जिसको आप जाने। उसके लिए जवाल, जवाल मीन्स मोबाइल। नेक्स्ट वर्ड है तुफाह। तुफाह इसका मतलब होता है इंग्लिश में एप्पल। एप्पल जिसको हम फ्रूट्स में खाते हैं, उस एप्पल को कहते हैं तुफाह। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मौज। मौज, मौज किसको कहते हैं? मौज भी, दैट इज वन ऑफ द फ्रूट्स जिसको हम डेली खाते हैं, उन्हीं में से मौज है। मौज मीन्स इंग्लिश में बनाना, जिसको हम हिंदी में केला भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज शजर। शजर मीन्स इन इंग्लिश ट्री, जिसको हम हिंदी या उर्दू में कहते हैं दरख्त। नेक्स्ट वर्ड इज कमीज। कमीज, कमीज को इंग्लिश में कहते हैं शर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज इक्दुन। इक्द मीन्स नेकलेस, जो गले का हार होता है, जो एज अ ज्वेलरी यूज किया जाता है, उसको कहते हैं इक्द। उसकी इंग्लिश होते हैं इंग्लिश में जिसको हम नेकलेस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज खातम। खातम की मीनिंग होती है इंग्लिश में रिंग। एंड उसके बाद का वर्ड है खशब। खशब मीन्स होता है वुड, यानी हिंदी और उर्दू में जिसको हम लकड़ी कहते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें लकड़ी की बनी होती हैं और हमें जानना चाहिए कि लकड़ी को हम अरबिक में क्या कहते हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है, नेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है आपके लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है और बहुत खूबसूरत है। जब भी आप कभी गार्डन में, पार्क में जाएंगे तो वो वर्ड आपको मिलेगा। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर। फ्लावर हिंदी में कहते हैं फूल, बट उसकी अरबिक क्या होती है? उसकी अरबिक भी वैसा ही खूबसूरत है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा है। उसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो कितना ब्यूटीफुल वर्ड लगता है। उसको कहते हैं जहरुन। जहरुन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज अरबिक में उसको हम बाजिंजान कहते हैं, दैट इज वन ऑफ द वेजिटेबल्स। उसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्रिंजल, जिसको हम डेली अपने मील्स में, अपने खाने में उस वेजिटेबल को यूज़ करते हैं। इसलिए ये ऐसे वर्ड हमने सेलेक्ट किए हैं जिसकी हमें ज़रूरत रहती है और जिसके जानने से हम अगर न जाने तो किसी चीज़ से महरूम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जज़र। जज़र, जज़र इंग्लिश में जिसको कहा जाता है कैरेट, जिसको हम अपने घरों में सलाद में यूज़ करते हैं। इट्स वेरी यूजफुल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स। एंड उसके बाद का वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड इज कुर्सी। कुर्सी को तो कुर्सी ही कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं और इंग्लिश में उसी को चेयर कहते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट वर्ड इज दुखान। दुखान की मीनिंग होती है इंग्लिश में स्मोक, जिसको हम हिंदी या उर्दू में कहते हैं धुआं। उसके बाद का एक वर्ड है असीर। असीर, असीर हम कहते हैं इंग्लिश में जूस, जिसको हम पीते हैं अपने खाने के बाद या कभी भी मार्केट्स में या कहीं गए एंजॉय करने, तो उसको जूस को हम यूज़ करते हैं, पीते हैं। तो इन तमाम वर्ड्स को हमको जानना चाहिए। तो दीज आर वेरी न्यू एंड वेरी ब्यूटीफुल वोकैबुलरीज एंड वी विल यूज इन आवर सेंटेंसेज when we are going to do exercise. But once again I would like to repeat the same Arabic words so that we can make our pronunciation very clear and perfect. तो इन वर्ड्स को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप उसको देखिए कि वो वर्ड क्या है। हलीब, उसके बाद का वर्ड है जवाल। अब मेरे साथ इसको आप रिपीट कीजिए ताकि आपका भी प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट और क्लियर हो, इसलिए कि प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अरबिक लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड इज तुफाह। तुफाह, आप भी कहिए तुफाह। उसके बाद मौज, आप कहिए मेरे साथ मौज। तो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट कराने के लिए जो न्यू वर्ड्स, जो न्यू वोकैबुलरीज हैं इस लेसन में, उसको रिपीट कर रहा हूँ। और कुछ वर्ड्स हमने रिपीट कर लिए हैं और आगे के वर्ड मेरे साथ रिपीट करते चलिए। द वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड इज शजर। शजर। नेक्स्ट वर्ड इज कमीस। कमीस। उसके बाद इक्द। इक्द, मेरे साथ कहिए एक बार और,
इक़्द। उसके बाद का वर्ड है नेक्स्ट ख़ातम। ख़ातम, एक बार मेरे साथ कहिए, इसलिए कि बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है। आप कभी भी रिंग किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या खुद यूज़ कर रहे हैं तो उसको अरबिक में कैसे कहेंगे? उसको हम कहेंगे ख़ातम। उसके बाद का वर्ड है खशब। खशब, मेरे साथ एक बार और कहिए, खशब। उसके बाद का वर्ड है ज़हर। ज़हरुन। उसको जब वॉवेल्स के साथ हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे ज़हरुन। इसकी मीनिंग होती है फ्लावर। फ्लावर, एक बार मेरे साथ फिर इसको प्रोनाउंस कीजिए, ज़हरुन। उसके बाद वर्ड है बाज़िंजान। मेरे साथ कहिए, बाज़िंजान। उसके बाद का वर्ड है जज़र। इसको वावल के साथ हम जब कहते हैं जज़रुन, इसको हिंदी और उर्दू में कहा जाता है गाजर, जिसे हम अपने सलाद में यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा वर्ड ये है। इसके बाद का वर्ड आता है, बहुत ही कॉमन वर्ड है, दैट इज़ कुर्सी। और बहुत इजी भी वर्ड ये है, कुर्सी। नेक्स्ट वर्ड इज दुखान। दुखान, मेरे साथ एक बार कहिए, दुखान। उसके बाद वर्ड है असीर। ये भी बहुत यूज़फुल वर्ड है और बहुत सारी जगहों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं कॉमनली। तो इसको एक बार मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, असीर। These were very useful and beautiful words, and these were masculine words. Now we are going to make sentences so that we can use name of colors in Arabic in our sentences. और उसको नेम कलर्स के नेम को हम यूज़ करेंगे प्रॉपर उसके मैस्कुलिन वर्ड के साथ, और पूरा हम उसे बनाएंगे एक फुल सेंटेंस, और उसमें जान सकें कि कैसे इसको यूज़ किया जाएगा। अब उसकी मीनिंग क्या होती है, मीनिंग विल बी सेम बट वी विल बी मोर कॉन्फिडेंट व्हेन वी आर मेकिंग फुल सेंटेंसेस और व्हेन वी आर गोइंग टू यूज these vocabularies, especially names of colors, in our sentences. So let's do some exercises by using masculine words of Arabic colors, in which we will select useful masculine words to use Arabic colors names. So here are a few words. Abyad, aswad, ahmar, akhdar, अज़रक, असफर। ये अरबिक के वर्ड हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कलर्स एक्सप्रेस करने के लिए या कलर बतलाने के लिए। अब इसको हम जा रहे हैं सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे कि कैसे इसको सेंटेंस में यूज़ किया जाए तो मीनिंग कितनी ब्यूटीफुल होगी, और उसको कलर्स को बतलाने के लिए। Here are examples in the sentences for masculine words. So come on, the first full sentence is अल हलीबु अबयद। मैंने आपको हलीब का वर्ड बतलाया था, उसको हम यूज़ करते हैं अब कलर के लिए कि अल हलीबु अबयद, द मिल्क इज वाइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज अल जवालु अस्वद, द मोबाइल इज ब्लैक। नेक्स्ट सेंटेंस इज अत्तफाहु अहमर, द एप्पल इज रेड। नेक्स्ट सेंटेंस इज अल मौजु अस्फर, the banana is yellow. Next sentence is ash-shajaru akhdar, the tree is green. Next sentence is al-qamisu azraq, the shirt is blue. उसके बाद एक वर्ड है al-iqdu dhahabiyun, the necklace is golden. उसके बाद का सेंटेंस है अल खातमु फिज़्ज़ियुन। इसकी मीनिंग इंग्लिश में क्या हुई, सेंटेंस उसका क्या हुआ, द रिंग इज सिल्वर। नेक्स्ट सेंटेंस इज अल खशबु बुन्नियुन, द वुड इज ब्राउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज अज़्ज़हरु वर्दियुन, जिसे हम कहते हैं उर्दू में या हिंदी में कि फूल पिंक है, द फ्लावर इज पिंक। उसके बाद का सेंटेंस है अरबिक का अल बादिंजानु बनफसजियुन, द ब्रिंजल इज
purple. Next sentence is al-jazaru burtaqaliyun. The carrot is orange. उसके बाद का सेंटेंस है al-kursiyyu ramadiyun. The chair is grey. यहाँ तक कलर्स के सेंटेंसेस थे। उसके बाद थोड़ा सा उससे जो 2-3 वर्ड मैंने आपको बतलाए थे कि these words are related to the colors. So now we are going to make the sentences for them also. The sentence is هذا اللون فاتح, यानी this color is light. अगर आपको कहना हो कि ये लाइट कलर है तो आप कहेंगे هذا اللون فاتح. अरबिक में आप इसी सेंटेंस को यूज़ करेंगे और इसको आप मेमोराइज भी कर सकते हैं कि अगर ये आप सेंटेंस आपने मेमोराइज कर लिया दैट विल बी यूजफुल सेंटेंस. आप इसको बहुत कॉमनली बहुत सारी जगहों पर इसको यूज़ कर सकते हैं. और अगर आपको कहना हो हिंदी में कि ये रंग गाढ़ा है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे दैट कलर इज डार्क, तो आप उसकी अरबिक में उसको अरबिक बनाएंगे फुल सेंटेंस में. उसको अरबिक में कहेंगे ज़ालिकल लौनु गामिकुन. अब उसके बाद एक सेंटेंस हम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम ये कहना हो कि किसी चीज़ को बतलाना हो कि वो कलर्ड है, वो सिस्टम कलर्ड है, वो मोबाइल कलर्ड है. तो उसके लिए वर्ड जो होगा वो मुलव्वन यूज़ करेंगे और सेंटेंस हम बनाते हैं तो वो सेंटेंस है अल जिहाज़ु मुलव्वनुन. यानी इंग्लिश में क्या हुआ, द सिस्टम इज कलर्ड. दीज वर सेंटेंसेज in which we have used masculine words and colors का जो फॉर्म था उसको भी masculine का यूज़ किया था. अब एक बार हम सिर्फ उसी अरबिक सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं और आप केयरफुली उसको सुनिए और आप उसको रिपीट भी कीजिए ताकि आपका सेंटेंस फुल बने और आप वोकैबुलरीज आपकी रिच हो और आपका प्रोनाउंसिएशन भी परफेक्ट हो. तो फर्स्ट सेंटेंस इज अल हलीबु अबियज़, अल जव्वालु अस्वद, अत्तुफ़ाहु अहमर, अल मौज़ु अस्फर. मेरे साथ आप रिपीट करते रहिएगा, मैं इसीलिए थोड़ा सा आपको गैप देता हूँ कि आप उस बीच में आप कह लें. अश्शजरु अख़ज़र, अल क़मीसु अज़रक़, अल इक़्दु ज़हबियुन, अल ख़ातमु फ़िज़्ज़ियुन, अल ख़शबु बुन्नियुन. सेंटेंस इज अल ख़शबु बुन्नियुन, अज़्ज़हरु वर्दियुन, अल बाज़िंजानु बनफ़सजियुन, अल जज़रु बुर्तक़ालियुन, अल कुर्सियु रमादियुन. और अगर आपको कहना है कि ये लाइट कलर है, ये डार्क कलर है, ये चीज़ कलरफुल है, तो उसके लिए आप कहेंगे हादल लौनु फातिहुन, यानी ये लाइट कलर है. अगर आपको कहना है कि ये डार्क कलर है या वो डार्क कलर है तो आप कहेंगे ज़ालिकल लौनु गामिकुन. मेरे साथ एक बार इन तीनों सेंटेंस को एक बार रिपीट कीजिएगा. हादल लौनु फातिहुन, ज़ालिकल लौनु गामिकुन. उसके बाद का सेंटेंस है अल जिहाज़ु मुलव्वनुन. यहाँ तक सेंटेंसेस में हमने इसको यूज़ किया अभी तक. और कलर्स के नेम को हमने कलर्स के अरबिक वर्ड को सेलेक्ट किया, उसके मैस्कुलिन फॉर्म को लिया, पहले उन वर्ड को अपने मीनिंग के साथ पढ़ा, फिर उसके प्रोनाउंसिएशन पर फोकस किया कि उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो. देन हमने कुछ न्यू वोकैब्स ली जो हमारी डेली लाइफ में यूज़फुल हो, जो हम मेमोराइज करें और उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ करें. इसलिए कि जितना ज़्यादा वोकैबुलरीज हमारे पास होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के सीखने के लिए. तो वी आर लर्नर, आपको और हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब्स को मेमोराइज करना चाहिए. तो अभी हमने आपको सिखाया कि हम मैस्कुलिन फॉर्म को कैसे लें, उसको कैसे यूज़ करें और उसका सेंटेंस कैसे बनाएं. और जिन सेंटेंसेस को मैंने बनाया है उसमें इन बात का ख्याल रखा है कि आपको उस
जो वर्ड नया लिया, जो वोकैब्स मैंने ली है, उस वोकैब्स को, उस वर्ड को जानकर मालूम हो जाए कि इसका कलर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा जज़र, आप जज़र जिसको कैरेट कहते हैं, आपने जब उसको देखा कि ये जज़र, ये गाजर है या कैरेट है, तो वो लेते ही आपके माइंड में उसका कलर भी आ जाता है। तो उसका कलर कैसा होगा? जज़र का कलर बुर्तकाली होगा। तो अब उस चीज़ को हमने ऐसे सेलेक्ट किया है। जैसे फर्स्ट वर्ड हमने लिया था हलीब, जब जिसको मिल्क कहते हैं या दूध कहते हैं, तो जब हमने दूध को देखा, मिल्क को देखा, उस वर्ड को, उसकी अरबिक भी सीख ली, और उसको जब हमारे माइंड में वो वर्ड आया, तो वो वर्ड आते ही उसका कलर भी क्लियर हो गया कि द मिल्क इज वाइट, अल हलीबु अबयज़। तो इस तरीके से ये बहुत यूज़फुल वर्ड्स थे जिसको हमने सेलेक्ट किया, और इसको आप कहते समय ही आपको मालूम हो जाएगा कि इसका कलर क्या रहा होगा या इसका कलर क्या होगा। तो इन वर्ड्स को ज़रूर आप मेमोराइज़ कीजिएगा, और इस मेमोराइजेशन के साथ साथ आपको कलर भी मालूम होता जाएगा, और बहुत ज़्यादा आपको इस पर कलर को मेमोराइज़ करने में कोई कोशिश या एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अगर आपने न्यू कैप्स को मेमोराइज कर लिया है, देन कलर्स के नेम्स अरबिक में जो है वो आपके माइंड में ऑटोमेटिक आते जाएंगे। तो आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन में आपने सीखा है कि अरबिक में हम कलर्स को मैस्कुलिन के फॉर्म में कैसे यूज़ करें, उसके वर्ड को सीखा, न्यू कैप्स को सीखा हमने, और उसके बाद सेंटेंसेस हमने बनाए हैं। सेंटेंसेस के बाद अब आई थिंक यू गॉट सम न्यू वोकैब्स एंड यू हैव एंजॉयड इन दिस लेसन एंड दैट विल बी मोर यूजफुल। और यहाँ पर हम इस लेसन को ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे। सी यू, माअस्सलामा।